so hello everyone. Okay, so hi Sanyam sir, hi Harish sir, hi Aram sir. Hey, ma'am. So Hi, ma'am. yeah, so sir, today our this meeting will be regarding 1 year's master's program, right? So mostly अभी मेरी जब स्टूडेंट से बात होती है तो बहुत स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं एंड दे आस्क मी मैम वी वांट टू डू 1 year's मास्टर्स प्रोग्राम दैट इज मास्टर्स बाय रिसर्च भी कह देते हैं बहुत अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में। तो वो करना है फ्रॉम अब्रॉड यूनिवर्सिटीज। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो यही होगा कि 1 year मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहिए, अगर करना चाहिए कहाँ से करना चाहिए, वो इक्वली लाइक इक्वल होता है एज कम्पेयर टू 2 years मास्टर प्रोग्राम, पीएचडी कैसे मिलती है उसके बाद। सो वील रिवॉल्व अराउंड इट। ओके, Okay. सो आई थिंक आप तीनों एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, स्टार्टिंग विद सनम सर। Hi, everyone. So my name is Sayam, and I'm currently doing PhD in Aarhus University, Denmark. And मैं योरपीडिया में 4-5 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे PhD के भी अभी 1 साल होने आया है। और इससे पहले आई वाज इन नॉर्वे डूइंग मास्टर। थैंक यू। हरीश सर। Hello everyone, my name is Harish and I'm doing a PhD in University College Dublin, Ireland. And I have been mentoring students for about almost 1.5 years with your PDA Global. Yeah, that's all. Mhm. Thank you. Hi everyone, myself Arham Ali Khan. So I'm studying Masters in Computational Science and Engineering at Technical University of Munich, and I have been with Europedia since 1 year, and I have took the courses and I can vouch for it. And now I am a part of their team, and I am guiding students right now. Okay, so great. So I think now we can start with the questions. बहुत से सनम सर, हरीश सर, अनम सर इसमें क्वेश्चंस वो हैं जो बच्चों ने मुझसे पूछे हुए हैं, ठीक है? जो मैं चाहती हूँ कि if they listen from you, they'll get the answers from you. It will be more clear to them उनके क्वेश्चंस के। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे लगता है बच्चों के लिए Right, जानने बहुत जरूरी हैं, right? Mhm. So right, right. starting with कि what is 1 year's, Sanam sir, starting with you, what is 1 year's master's program, right? And how like it is different from 2 years program or it is same, and what are the advantages and disadvantages of this particular 1 year's program if students want to do it from abroad universities? Yeah, thanks. So 1 year master's program in Europe versus 2 year master's program in Europe is particularly uh, different in a sense. You complete your less European credits transcript system. So it's all about ECTS that you get in your master degree. So for 1 year program you get 90 ECTS mostly, but for 2 year programs you Mhm. get 120 ECTS. Moreover, the major difference comes when you are writing a thesis. So the thesis is very compact. Sometimes in 1 year master program they run 3 semesters, or you can say trimester. So 2 trimesters are completely on your coursework, where you do 30 and 30 ECTS, and the rest of the trimester is dedicated for the thesis. In 1 year program it's good if you are doing it for a job. If you want to quickly get into the labor market, it's good for 1 year master program. But if you are entering in the research market, you want to do research, and you want enough time to dedicate yourself to get an idea or overall idea of what you are going to do for rest of your life, I would say then Mhm. 2 year master programs is good. ओके, थैंक यू सनम सर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों ने मुझसे वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, इज 1 year मास्टर्स इक्वली गुड फॉर गेटिंग जॉब्स? तो इसमें हरेश सर, सनम सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम बच्चे करते हैं फ्रॉम अब्रॉड यूनिवर्सिटीज, सो हाउ लाइकली दे कैन गो फॉर गेटिंग दी जॉब्स? Uh, so for jobs, I don't think a 2 years program matters much, as Sonam sir already told that one who is very research oriented and has a want to know a vast measure topics in that particular domain, so they can go for 2 years masters. But I think mostly when companies they hire for, they look at your basic fundamentals. So just to give you one instant example, what happened recently is in environmental engineering in University College Dublin, all of the 1 year master's course students are placed except one, I think, and still they haven't even completed their coursework because it is going to complete in the during the end of September, and all of them got placed. So I think it matters whether there are job opportunities and all, and 1 year masters is
really good enough if your intent is to get into industries. Okay, means I think from Sanam sir's point of view and your point of view, I think Sanam sir, you want to say something, right? या सो हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली बच्चों के लिए मनी लोन लेना और ये सब बहुत मैटर करता है, कमिंग हम्म फ्रॉम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और इवन अपर मिडिल क्लास नाउडेज. Mm-hmm. तो मुझे लगता है कि 1 year मास्टर्स इज लाइक, if they want to get into job market, even they can do research as well. There's no blockage for that. बट आप लिविंग एक्सपेंसेस 1 साल के पूरे वेव ऑफ कर सकते हो अगर 1 साल का मास्टर्स आप करते हैं तो. और लिविंग ट्यूशन फीस तो मोर और लेस चलिए आपको देनी ही है, मतलब जो भी पे है. बट आपका लिविंग Mm-hmm. एक्सपेंसेस पूरा 1 साल का वेव ऑफ हो सकता है, और आप सेकेंड ईयर जैसे ही एंटर करते हैं तो आप अपने पोस्ट स्टडी वीजा और जो भी कंडीशंस हैं उस कंट्री के, उस बेसिस पे आप जॉब टारगेट कर सकते हैं. इवन विद इन द Mm-hmm. लास्ट ट्राइमेस्टर आप जॉब टारगेट कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि मनी वाइज भी 1 year मास्टर्स काफी इकोनॉमिकल है बेसिकली. टाइम तो बचा ही रहा है आपका, बट साथ में आपका जो बर्डन है लोन वगैरह का वो ओवरहेड कम करता है. Mm-hmm. मीन्स अगर मैं क्रक्स की बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इट्स सिंपल लाइक कि 1 year मास्टर्स का जो प्रोग्राम है, इट्स इकोनॉमिकल प्रोग्राम एज वेल, एंड जॉब भी अगर आप करना चाहते हो आफ्टर डूइंग दिस, सो इट इज इजी एज पर जो हरीश सर ने बोला कि आप जॉब भी कर सकते हो. एंड ही गेव एग्जांपल ऑफ हिज यूनिवर्सिटी एज वेल, जिसमें एग्जैक्टली. ऑलमोस्ट 1 year के जितने भी बच्चे थे जो 1 year मास्टर्स प्रोग्राम के कोर्सेज में थे, दे ऑल गॉट प्लेस्ड. सो इफ आर राइट. मूविंग टू इंडस्ट्रियल साइड, अगर आपने अपनी एजुकेशन लेकर इंडस्ट्री साइड में जाना है, तो I think 1 year master's program is also a very good option, right? यस. यस. Okay. So my next question is, what about if someone wants to do PhD after masters, 1 year masters? तो ये क्वेश्चन का आई थिंक आंसर हरेश सर, सनम सर, आप दोनों ही दे सकते हो कि अगर, और अरहम सर आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो अकॉर्डिंग टू जर्मनी एज वेल, कि अगर बच्चे ने पीएचडी करनी है मास्टर्स के बाद, तो अगर वो 1 साल की मास्टर्स करता है, उसका पीएचडी करनी पॉसिबल है? Mm-hmm. इसमें बिल्कुल पॉसिबल है, मैं बताता हूँ. 1 year और 2 year मास्टर्स में पीएचडी के प्रोस्पेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है. जो फॉर 1 year मास्टर्स द थीसिस दैट दे डू इज ए माइनर थीसिस एंड टेंटेटिवली इट इज ए 1 trimester, 4 months thesis. Most of the European countries I'm speaking of. However, if you do that for a like 2 years masters, the time period extends and you kind of do a bit of a intense research than the 1 year masters program. So eventually that makes you more eligible for the research oriented work further, which is a PhD program that makes it easier. But having said that, there is not like that if you do a 1 year master's with a minor thesis, there is a low chance of getting a PhD. It's not true. But having said that, I think if someone is really into research and want to extend his or her horizons in that particular field, wants to do it at a master's level to explore and see whether he or she would like to continue this career in the PhD, they should consider it. Okay, great. I think Maybe I think this is true, or I would say correct in context of English speaking countries, Yeah. particularly UK, Ireland, and all. But Mm. coming with Scandinavia and Germany, I would say maybe Arham sir will also agree Yeah. that 120 ECTS is the core criteria to get a PhD in Scandinavia Yeah. plus Germany. So if you are coming with 90 ECTS, they would either ask you to complete one semester in the university, or otherwise they will hire you as a PhD directly. So यहाँ पे Exactly. यहाँ पे तो at least Denmark, Germany, since Germany is on the border, I know we have been visiting Germany as well for different purposes, and I have studied in Norway as well. तो यहाँ इन तीन countries का तो I can say कि 120 CTS is a core criteria to get a PhD. बिकॉज Mm. यहाँ पे जो क्लर्क, आई मीन पहले तो क्लर्क आपका प्रोफाइल एवेलुएट करता है, देन इट गोज टू प्रोफेसर. तो क्लर्क ही आपको डिसएलिजिबल या अनएलिजिबल डिक्लेयर करके और हटा देगा प्रोफाइल, इररेस्पेक्टिव आपने कितना रिसर्च किया है, आपने कितना सीजीपी लाया है. बट अगर 120 ECTS नहीं है तो दे विल जस्ट Exactly. Like from German point of view, like यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जर्मनी एंड फ्रांस वगैरह में क्या है, ये लोग बोलोग्ना सिस्टम कंसिडर करते हैं ट्रू. पीएचडी के लिए. तो ये लोग लाइक इनका थ्रेशोल्ड रहता है कि लाइक इफ यू वांट टू डू अ पीएचडी यू शुड हैव एटलीस्ट 300 ECTS. तो आपका बैचलर्स का जो इंडिया में जो ट्रू. 8 सेमेस्टर्स की बैचलर्स होती है वो अप्रोक्सीमेटली 240 ECTS होता है. एंड अगर आप मास्टर्स करते हैं
तो अगर आप 1 ईयर मास्टर्स कर रहे हो तो आपको 60 CTSE मिल रहा है, तो आप 300 थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाते जनरली। तो एटलीस्ट 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स बेस्ट होता है अगर आपको PhD करना है। लेकिन काफ़ी एक्सेप्शंस इसमें हो सकते हैं अगर आपके रिसर्च आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है, एंड अगर आप किसी ऐसी लैब में गए हैं जहाँ आप 1 ईयर का प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन उसमें पोटेंशियल मतलब है उस लैब में कि आपको PhD पोजीशन दे सकते हैं, तो ये केस टू केस डिफर कर ट्रू। सकता है। स्पेशली इन केस ऑफ बायोलॉजी एंड जो लैब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें डिफरेंस हो सकती हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली स्टेम फील्ड या जैसे EC इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के जहाँ जहाँ काफ़ी इंटेंस कंपटीशन होता है, तो प्रोफेसर प्रेफर करते हैं कि भाई ऐसे बंदे को लें जिसके पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस एकेडमिया में, रिसर्च जिसका ग्रेड्स अच्छा एक्सपीरियंस। है, हाँ ग्रेड्स अच्छा है, एंड जो लैब में मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है। लेकिन प्रिफरेबली अगर आपको PhD करनी है तो 2 ईयर्स का आप कंसिडर करें सो मास्टर्स। आई थिंक इसका मोर और लेस आंसर ये है कि मुझे हरेश सर, सनम सर और अरम सर आपकी बात से ये चीज लग रही है कि चाहे वो 1 ईयर का प्रोग्राम है, कई कंट्रीज में स्पेसिफिकली बात करूंगी कि वो 1 ईयर प्रोग्राम के बाद भी PhD के लिए दे वेलकम यू। और कई हाँ कंट्रीज ऐसी हैं जो 2 ईयर्स का मास्टर्स प्रोग्राम मानती हैं, और जैसे अरहम सर ने बोला कि एक्सेप्शंस आर देयर, राइट। सो मुझे लगता है अगर बच्चा हमारे पास आता है विद हिज और हर प्रोफाइल, तो आप लोग अच्छे से इवेलुएट करके उसको बता सकते हो यस। कि अगर वो 1 ईयर का हाँ कोर्स 1 ईयर का कोर्स टारगेट कर रहा है, सो इज इट फीजिबल फॉर हिम और हर, या उसको 2 साल के कोर्स में जाना चाहिए। सो आई थिंक इसका आंसर आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से दोगे। व्हेन सही स्टूडेंट्स है। विल वी ऑलवेज से कि स्टूडेंट्स आर वेलकम कि वो अपनी इवेल्युएट करवा सकते हैं प्रोफाइल फ्रॉम हम्म, यू। सो आई थिंक मोर और लेस इसका जो आंसर है वो येस भी है, एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो कंट्री टू कंट्री, राइट। Before we move on to the next, I'd like to say with a Irish perspective. और मैं जैसे बात कर रहा था हाल ही में लोगों से, तो जो मास्टर्स 1 ईयर यहाँ पे होता है, 60 क्रेडिट्स होती है उनकी कोर्स वर्क की। सन्याम सर, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा है स्कैंडिनेवियन और कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड ऑल। सो और इनका जो मिनी प्रोजेक्ट होता है वो 30 क्रेडिट्स, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 120 शायद नहीं है, कम है थोड़ा, 90 क्रेडिट्स है। बट वो भी डिपेंड ट्रू करता ट्रू। है कि ईच मॉड्यूल जो है वो कितना क्रेडिट्स का होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है उनका ईच मॉड्यूल का क्रेडिट्स 5 क्रेडिट्स होता है, या फिर हम्म। मैक्सिमम 7.5 है, 10 होता है रेयरली, वेरी रेयरली, बट मोस्टली ओके। 5 क्रेडिट्स। तो उस हिसाब हम्म। से चीज़ है। ट्रू ट्रू। ओके, डन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सनम सर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सा बच्चा है उसको अब जैसे कई बच्चों की अपनी प्रेफरेंस होती है कि मुझे 1 ईयर में जाना है या 2 ईयर में जाना है, बट अगर हम एक लाइक सिर्फ एक रफ आइडिया मैं आपसे लेना चाहूँ कि कौन से बच्चे को 1 ईयर के कोर्स में जाना चाहिए और कौन से बच्चे को 2 ईयर्स के मास्टर्स में कोर्स में जाना चाहिए, क्या डिफरेंस है इनमें? राइट। तो मैं काफी बच्चों से इंटरेक्शन करता भी रहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी US और UK और अलग अलग कंट्रीज में हैं, राइट। तो वो बताते हैं कि यूजुअली जॉब प्रेफरेंस उनको बहुत जल्दी मिलता है जो इंडिया से जॉब एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, इररेस्पेक्टिव वो कितने साल का मास्टर्स कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप ऐसे कंट्रीज टारगेट कर रहे हैं लाइक USA, UK, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो मुझे लगता है कि आप 1 ईयर मास्टर्स में इजीली स्लाइड इन कर सकते हैं। आपके पास प्लस बशर्ते आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है इंडिया में और आप जॉब ही लेना चाहते हैं मास्टर्स के बाद, तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो ये बहुत ही स्मूथ प्रोग्राम है। अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी किसी MNC में, Amazon या फ्लिपकार्ट, आई डोंट नो, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने मास्टर्स के बाद भी जॉब ही करेंगे, तो मुझे लगता है कि 1 ईयर मास्टर्स उनके लिए बहुत सूटेड है। बट जो डाइसी है अपने करियर को लेकर, तो उसको डेफिनेटली 2 ईयर मास्टर्स करना चाहिए सो दैट वो रेस्ट ऑफ द उनके फ्यूचर लाइफ में भी वो एलिजिबल रहेंगे, एटलीस्ट कभी उनको PhD करना है या मन बनाना है तो अगर वो डाइसी हैं तो 2 ईयर मास्टर्स के लिए जाए। बट अगर फॉर श्योर उनको जॉब करना है तो वो 1 ईयर मास्टर्स चूज कर सकते हैं। और ये ओके। कंट्री पे भी डिपेंड करता है कि कुछ कंट्रीज ऑफर नहीं करती हैं, स्पेशली लाइक यहाँ डेनमार्क में तो 1 ईयर मास्टर्स नहीं होता है बट स्वीडन में होता है, और स्वीडन में कंपनीज भी बहुत सारी है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स और इन लोगों के लिए। तो वहां पे वो लोग 1 ईयर मास्टर्स करके बहुत इजीली ब्लेंड कर सकते हैं स्वीडिश जॉब मार्केट में। ओके, डन। सो आई थिंक वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट एज वेल, कंट्री टू कंट्री एज वेल, एंड राइट। मेजरली कंट्रीज जैसे आपने UK आयरलैंड बोला, दे विल ऑफर अ 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम एंड स्टूडेंट्स कैन राइट। इजीली टेक, बट उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं। एंड सम कंट्रीज जैसे आपने डेनमार्क बताया दैट विल लाइक वहाँ पे 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम इतना नहीं है, तो फिर मतलब राइट। इट डिपेंड्स अपॉन कंट्री, राइट। राइट। सो राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which countries offer 1 year मास्टर्स प्रोग्राम? अरम सर, आप थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में, कुछ कंट्रीज के आप नाम अगर बता सके जो 1 year मास्टर्स के कोर्सेज ऑफर करते हैं? अच्छी बात ये है कि लाइक मोस्ट ऑफ देम आर इंग्लिश स्पीकिंग, लाइक यूके स्पेशली 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम ही देते हैं। आयरलैंड, नेदरलैंड्स, बेल्जियम में कुछ सिलेक्टेड कोर्स मतलब कोर्सेस, एंड स्विट्जरलैंड में भी होते हैं कुछ कुछ कोर्सेस। एंड जहाँ नहीं होते हैं लाइक जर्मनी, जर्मनी में कम होते हैं। 1.5 ईयर्स से कोर्सेज यहाँ मिल जाते हैं जर्मनी में। सो इफ़ यू आर केपेबल यू कैन कन्वर्ट दैट 1.5 ईयर्स टू 1 ईयर, अगर आप मतलब क्रेडिट्स जल्दी जल्दी कर पाएँ। लाइक ओके। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑलवेज, लाइक 90 क्रेडिट्स आपको लेना है। अगर आप पहले सेमेस्टर में 45 या 50 क्रेडिट्स ले लें and दूसरे में थीसिस के साथ कुछ कोर्सेज कर ले, तो आप उसको भी क्रंच कर सकते हैं 1 ईयर के अंदर। ये एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे। एंड देन जहाँ 2 ईयर्स हो रहे हैं लाइक फ्रांस, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पे भी लाइक 1.5 और 2 ईयर्स के ही प्रोग्राम्स ज़्यादातर चलते हैं। True. ओके। अरम सर, मुझे आपसे ये चीज, एक बहुत पॉइंट आपने बोला कि इफ स्टूडेंट्स गेट देयर क्रेडिट्स फास्ट, मतलब वो उनकी कैपेबिलिटी पे है, इफ दे आर हम्म। डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड ऑल। आई थिंक सनम सर और हरीश सर भी इस बात में लाइक एग्री करेंगे। तो वो 1.5 इयर्स के मास्टर्स कोर्स को 1 year में भी कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज व्हाट आपने बोला, बिल्कुल मतलब है, चांसेस है। तो सिर्फ चांसेस ये है। सिर्फ जर्मनी में होता है या और भी किसी कंट्री में होता है? ये आई थिंक स्पेशली मैं जर्मनी में हूँ तो मेरे को जर्मनी का पता है, क्योंकि जर्मनी में आपको ऐसा True. रहता है कि समर सेमेस्टर या विंटर सेमेस्टर में नंबर Right. ऑफ क्रेडिट्स रहते हैं। तो हम्म। वहां पे तो यहाँ पे आपका ऐसा नहीं रहता फिक्स कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सेट ये उठाना क्रेडिट्स के। आप कितने भी ले ओके। सकते हैं या आपकी कैपेबिलिटी पे। यहाँ पे बेसिकली जर्मनी में हमबोल्टियन ये लोग एजुकेशन फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आप फ्री विल आपके रहती है, आपको जो चूज करना है। True. यू आर फ्लेक्सिबल, आप अपनी खुद की मतलब लिख रहे हैं लाइफ, तो मतलब यहाँ आपके ऊपर है पूरा, आप कैसे पढ़ना चाह रहे True. हैं। आपको पूरे इलेक्टिव दे देंगे ना, आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा है। तो यहाँ Yeah, पे तो I think I डुएबल है। have similar experience from Norway as well. तो मेरे पास सेकेंड सेमेस्टर में मैंने एक कोर्स गलती से चूज कर लिया था जो मुझे नहीं करना था बेसिकली, और मुझे फ्यूचर के कुछ कोर्सेज करने थे जो बाद में रोल आउट होने वाले थे। तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में अपने मास्टर्स के 30 ECTS ले तो लिए, बट मुझे वो कोर्स नहीं करना था। तो मैंने जस्ट लाइक डी एनरोल कर लिया। मैं डिबार हो गया उस कोर्स में हम्म। पर्टिकुलरली जानबूझ के। और फिर मैंने मेरे फाइनल जो 30 ECTS मेरा फोर्थ सेमेस्टर के लिए बचा हुआ था, उसमें मैंने 40 ECTS लेके एक कोर्स लिया था। तो मुझे सेकेंड सेमेस्टर में कम बर्डन था, बट लास्ट सेमेस्टर में जहाँ दूसरे बच्चे लास्ट सेमेस्टर में बहुत कम बर्डन के साथ निकल रहे थे, मैंने हम्म। लास्ट सेमेस्टर में ज्यादा बर्डन लेके और मतलब एक कोर्स एक्स्ट्रा किया। तो वो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मतलब यहाँ पे आप अपना ओके। ECTS खुद डिजाइन कर सकते हैं, प्लानर। तो आई ओके। अग्री विद अरहम सर, या। ठीक है। सनम सर, एक क्वेश्चन है बच्चों का बहुत ज्यादा, जो मतलब मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अगर हम 1 year का मास्टर्स प्रोग्राम करते हैं तो उसको स्कॉलरशिप के चांसेस हैं, लाइक वी आर एलिजिबल फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप? So there are scholarships that are dedicated from university, and there are few scholarships that are hosted by different programs like Erasmus. तो Erasmus के कुछ programs हैं dedicatedly 1 year masters के लिए, जो मतलब आपके 3 होस्ट यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें, और हर ट्राइमेस्टर एक आप दूसरी यूनिवर्सिटी में करते हैं। तो हमारा एक स्टूडेंट है, वैसे उसने 2 year मास्टर्स किया हुआ है। वो आई गेस 3 जगह से मास्टर डिग्री लेके आया है। बट 1 year मास्टर प्रोग्राम में भी आपको तीन ट्राइमेस्टर में 3 यूनिवर्सिटीज या 3 कंट्रीज करने का मौका मिलता है, और वो फंडेड होता है पूरा। तो ये तो इराजमस का है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो यूके में डेडिकेटेडली 1 year मास्टर प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप होस्ट करते हैं। तो एक एक स्कॉलरशिप है शिवनिंग स्कॉलरशिप, आई थिंक। तो आई या थिंक हरीश सर को या अरहम सर को आइडिया होगा इसका, क्योंकि ये स्कॉलरशिप काफी पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट्स में, और कुछ हाँ। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं जो बच्चे ट्राई कर सकते हैं, आई थिंक। देयर आर यूनिवर्सिटीज का चांसेस। यूनिवर्सिटीज का उनका इंटरनल स्कॉलरशिप्स रहता है, जैसे आप अप्लाई हम्म। कर रहे हो, और उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ऐसा नहीं कि सबको मतलब ट्रू। वो आप हो जाता है। तो जैसे मैं दो केसेस बताऊंगा। एक केसेस में तो एक किसी को ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20% उसको स्कॉलरशिप मिल गया था, जो कि अबाउट लाइक मेरे यूनिवर्सिटीज़ में इट वाज अबाउट 8 to 10 लाख इंडियन रुपीस एट दैट टाइम। सो उतना मिल गया था। और किसी को नहीं मिला। तो मैंने पूछा कि आपको क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये यूजुअली मिल ही जाता है।
तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि सबको मिल जाए, उसके कंडीशंस होते हैं और उनका एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होता है. सो इफ यू वांट टू अप्लाई, so be careful when you should apply, so that you do not delay the admission process, and then in a way to get the scholarship as well. But True. आयरलैंड में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में इंटरनल स्कॉलरशिप्स तो रहता ही है कुछ परसेंटेज का. मतलब इट True. डिपेंड्स अपॉन यूके में डेडलाइन. भी. पीडिया हमेशा बोलती भी है कि जो डेडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल पे वर्क करो. जो आप लोग भी आई थिंक बच्चों को यही गाइड करते हो कि अकॉर्डिंग टू डेडलाइंस प्रोफाइल पे वर्क करो. अगर वो डेडलाइंस मिस हो जाए तो कोई फायदा नहीं है. सो वी कैन वर्क अकॉर्डिंगली. और अगर स्कॉलरशिप्स हैं और हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करें तो डेफिनेटली वी कैन गेट स्कॉलरशिप फॉर 1 year प्रोग्राम एज डन. ओके, सो Yeah, मेरा like नेक्स्ट क्वेश्चन. yes, हाँ ma'am. जी. मैम जैसे स्वीडन में भी मुझे याद है कि अगर हम मास्टर्स में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी मतलब कुछ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे स्कानिया ग्रुप है या इन लोगों के क्या इन लोग के इंटीग्रेटेड वो मास्टर्स भी रहते हैं तो इसमें भी ये लोग फंड कर देते हैं कभी कभार. एंड जैसे शेवनिंग का सर ने बताया यूके में, वैसे ही शेवनिंग काफ़ी मतलब ये तो हर साल आती है स्कॉलरशिप. एंड जैसे मेरे एक दोस्त है पर्सनल में जानता हूँ उसको, तो वो इंपीरियल में है. तो उसको इंडियन सरकार ने ही पूरी स्कॉलरशिप दी, उसकी पूरी ट्यूशन फीस भी कवर हो गई. लाइक उसकी 42,000 पाउंड थी ट्यूशन फीस 1 ईयर कोर्स की, एमएससी फिजिक्स. और पूरी ट्यूशन फीस इंडियन गवर्नमेंट ने उठाई उसकी. तो ये भी एक कैविएट है, लोगों को पता नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट फंड करती है True. ये सब चीज़ों को, अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में चाह रहे हैं. आई थिंक ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है जो हमें इस कन्वर्सेशन से मिला, दैट इंडियन गवर्नमेंट आल्सो फंड स्टूडेंट्स फॉर हम्म 1 year प्रोग्राम और 2 year हम्म प्रोग्राम्स. एंड वो भी पॉसिबिलिटी है इफ वी सर्च अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी, राइट? हम्म हम्म ठीक है. आराम सर, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो हम्म टाइमलाइन होती है 1 year प्रोग्राम की या 2 year प्रोग्राम हम्म. की, जैसे अप्लाई करना या प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग, वो ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों का, 1 year एंड 2 years का? हाँ यस मैम, लाइक ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता. अच्छा, ठीक है. मतलब क्राइटेरियाज होते हैं डिफरेंट बट ऑलमोस्ट हम्म टाइमलाइन और ऑल सेम ही होता है. ऑलमोस्ट सब सेम रहता है. ओके. तो सनम सर, आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कि 1 year और 2 years के, लाइक अगर टाइमलाइन की बात करें कि जो एडमिशन की डेडलाइंस होती हैं या सीजन्स होते हैं फॉल और स्प्रिंग, वो ऑलमोस्ट सेम होती है दोनों की? सो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड इनफैक्ट बच्चों के साथ जब गाइड करते हैं बच्चों को, तो मुझे लगता है कि फॉर 1 year मास्टर्स इनटेक देर आर मोर नंबर ऑफ इनटेक्स कंपेयर्ड विद 2 year. तो जैसे पर्टिकुलरली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में मैंने देखा है 5-5 इनटेक तक होते हैं 1 year मास्टर्स प्रोग्राम के कई बार. बट 2 year मास्टर प्रोग्राम तो काफी रिजिड होता है, जो मतलब आपकी अगस्त सितंबर के दौरान आप अप्लाई करते हैं और अगले साल अगस्त सितंबर तक आपका सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं मोर और लेस. तो ये कुछ डिफरेंस मैंने देखा है कि नंबर ऑफ इनटेक्स आर मोर फॉर 1 year मास्टर प्रोग्राम. और ओके. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें आयरलैंड के लिए स्पेशली. सो इनिशियली यू डू नॉट हैव टू डिसाइड वेदर यू वुड डू ए 1 year और ए 2 year मास्टर्स प्रोग्राम in Irish context. So, so if you have completed 1 year's master's program, but you want to extend your thesis, maybe you want to add some more courseworks to increase the number of credits that you already have, you can decide that later. Because I have seen meetings where they try to explain why do you need a 2 year program if you are towards the end of 1 year program in the universities. So they try to make points like why you should consider, why you shouldn't consider. So it's not very hard and fast rule that you decide at the very earliest stage, but you can decide it later. Talking only for Ireland. ओके. ओके. ओके सर. या लाइक तो डॉक्यूमेंटेशन वाइज आई गेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है. सनम सर, सॉरी मैम, आपकी अच्छा, आवाज कट डॉक्यूमेंटेशन रही में है. सनम सर इट्स ऑलमोस्ट सेम, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो, हम्म या एम आई ऑडिबल? डॉक्यूमेंट्स में फर्क नहीं है. यस मैम, ऑडिबल. ओके. सो सनम सर, थीसिस होती है एक, जो हम मास्टर्स में करते हैं, राइट? तो राइट. अगर 1 year के मास्टर्स प्रोग्राम थीसिस करते हैं हम, और अगर हम करते हैं तो उससे आगे पीएचडी मिलना पॉसिबल है 1 year की थीसिस के बेसिस पे? सो 1 year का थीसिस जनरली कंपनी के साथ कोलैबोरेट होता है. जैसे जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स जनरली जो अपना लास्ट ट्राइमेस्टर 30 ECTS या तो किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप, बिकॉज उनको इंटर्नशिप करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो कंपनी के साथ जनरली अपना थीसिस सबमिट करते हैं. और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो अपने इंटरनल प्रोफेसर के साथ ही कंप्लीट करके थीसिस सबमिट करते हैं. बट उस थीसिस की वैल्यू इतनी नहीं होगी जितनी एक बंदे ने पूरा सेमेस्टर मतलब पूरे 2 सेमेस्टर्स बिताए हैं उस थीसिस को कंप्लीट करने में. तो फॉर श्योर वो बहुत लाइट वेट थीसिस होगा. उससे आप हार्डली अपना रिसर्च पेपर स्टार्ट कर सकते हैं बट कंप्लीट नहीं कर सकते आई थिंक.
बट जितना हम्म, एफर्ट्स प्रोफेसर आपके मतलब 2 सेमेस्टर थीसिस पर डालेगा, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है बेसिकली, मतलब अगर देखा जाए तो। तो मुझे लगता है कि PhD मिलना इज स्टिल ट्रिकी विद 30 ECTS थीसिस, बट विद 60 ECTS या पूरे 2 सेमेस्टर का थीसिस करने से आपको डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट वर्कलोड मिलेगा एक प्रोफेसर को, तो वो आपको कभी रोकेगा नहीं किसी चीज के लिए बेसिकली। ओके और उससे आप अपने सेम थीसिस के जो सुपरवाइजर है मास्टर के, उसको आप डिफेंड कर सकते हो कि भाई मुझे इसका पेपर चाहिए सो दैट मैं PhD में अप्लाई कर पाऊँ। ओके डन अंडरस्टूड। आई थिंक बच्चों को आंसर मिल ही गया होगा इस चीज का ऑब्वियसली इस क्वेश्चन से। बट सनम सर मुझे यस। लगता है कि मैं क्रक्स जो अभी तक निकाल पाई हूँ, आई थिंक हरेश सर और अरब सर भी मेरे पे लाइक दे आल्सो टेक इट एज समथिंग, कि अगर एक बच्चा 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम को टारगेट कर रहा है तो वो कर सकता है, उसके बाद ही और शी कैन गो इनटू इंडस्ट्रियल लाइन एज वेल, और वो पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत हद तक प्रोफाइल और कंट्री पे डिपेंड होती है वो चीज। मतलब 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम इज ऑल्सो फिजिबल फॉर दी स्टूडेंट्स, बट अब वो कहाँ से करना है, आगे उनका फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो इस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, राइट। सो राइटली मुझे लगता है कि अगर बच्चे को 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम में जाना ही जाना है, या वो अभी ट्रिकी है, तो उसको एक बार एक्सपर्ट से इवेल्युएशन करवा लेनी चाहिए उस चीज की, सो मैं दैट उसको एग्री एक करता क्लैरिटी मिल हूँ, जाए, राइट। आई थिंक क्योंकि हरेश सर। क्योंकि ये completely agree, it is very subjective to the country. Now ऐसे ऐसे मैं अगर बताऊं, just a random stat, it's not very confirmed, 99% of the master's courses in Ireland are 1 year only. और जो हाँ, तो जो जो करते हैं बाकी ना, तो उनको पीएचडी, मतलब आयरिश मास्टर्स होने के बावजूद उनको पीएचडी आयरलैंड में ही कर रहे हैं, काफी लोगों को मैं जानता हूँ, ट्रू इन ट्रू। न्यूमरस पीपल। सो मुझे लगता है कि ये बहुत कंट्री स्पेसिफिक है, ये सब्जेक्टिव है। तो 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 इवालुएट तो जरूर कर हरीश लेना सर, चाहिए अगर मैं 1 ईयर स्टूडेंट्स को। मास्टर्स की बात करूं, अगर बच्चे ने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से 1 ईयर की मास्टर्स करी है, सो हाउ लाइकली इज दी कंफर्मेशन कि उसको उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पीएचडी भी आगे मिल जाएगी? That is again depends on how well you have done your research हम्म topic, but I will talk again about numbers. So मुझे लगता है कि मेरे डिपार्टमेंट में शायद 50 से 60 रिसर्चर्स होंगे अभी पीएचडी के ऑलमोस्ट, और मैं तो उनको 6-7 को तो मैं खुद ही जानता हूँ जिनकी मास्टर्स यहीं से ही है, हम्म मतलब सेम यूनिवर्सिटी से ही हैं, और उन्होंने ऑल्सो सेम प्रोफेसर से ही हैं। तो हम्म उन्होंने डिसाइड किया कि चलो, they got the taste of research during their masters, and then they हम्म decided, okay, we would pursue this as a PhD. They talked with their supervisors during the masters, और उनको वो मिली। फिर बाद में अभी वो लोग कंटिन्यू करे, कोई सेकेंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, कोई हाल ही में ज्वाइन किया है। तो there is a good chance that you can do it subjective to the project that you have done for your masters. So if you think that you want to convert it somehow after completing your masters, be careful of your project, research project. They should know that, okay, you all know the basics of research, at least you know. ओके। तो सनम, हाँ जी आराम से। इसमें मतलब यही है, प्रोफाइल पे डिपेंड करता है काफी चीजें। अगर अच्छा रिसर्च आउटपुट है तो लाइक प्रोफेसर को तो चाहिए कि बंदा आए या जो अच्छा रिसर्च डेफिनेटली, आउटपुट निकाले। मतलब तो पीएचडी में मुझे लगता है सनम सर, हम हमेशा यही बात करते हैं कि पीएचडी, आराम सर हरे सर आप एग्री करोगे कि पीएचडी में अगर आप जाना चाहते हो आगे, तो डेफिनेटली एक प्रोफेसर अगर आपको फुली फंडेड पीएचडी दे रहा है, तो ही और शी विल ओनली सी कि आपकी प्रोफाइल कैसे, लाइक आपकी जो रिसर्च है, आपकी मास्टर्स की थीसिस है, आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो कैसे उनसे मैच कर रहा है, एंड हाउ इट विल बी एडवांटेज फॉर देम कि अगर आप एक रिसर्च राइट। फेलो वहाँ पे, और राइट। फंडिंग होनी चाहिए प्रोफेसर के पास, बिकॉज अगर हाँ मतलब प्रोफेसर फंडिंग। फंडिंग लिख नहीं रहा है तो वो हाँ, क्योंकि यहाँ स्पेशली एटलीस्ट ये स्कैंडिनेविया में प्रोफेसर को फंडिंग लिखनी होती है, यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली नहीं मिलती है। और यूएस में थोड़ा अलग कल्चर है, यूएस या अदर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के पास। बट यहाँ पे तो प्रोफेसर फंडिंग लिखता है, तो अगर आप 1 ईयर मास्टर्स भी कर रहे हैं और आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं, तो प्रोफेसर को जाहिर कीजिए कि आप डेफिनेटली करना चाहते हैं उनके साथ ही PhD। अगर वो लेट हो जाएगा तो आपका जो गैप क्रिएट होगा, जब जब तक वो फंडिंग लिख के एक्वायर करेगा, उस गैप में आप करेंगे क्या? तो ये भी एक चैलेंज है। तो 2 ईयर मास्टर्स में जनरली बच्चे फर्स्ट ईयर के बाद ही दिखा देते हैं इंटरेस्ट, जैसे मैंने दिखाया था, और फिर बोलते हैं कि भाई मुझे आपके साथ ही PhD करनी है, पर मेरे पास 1 साल है, मैं आपका थीसिस अच्छे से करूंगा, बट उसके बाद मैं PhD भी ज्वाइन करूंगा।
और यहाँ पे पीएचडी ऑलरेडी 3 साल का है, तो मुझे नहीं लगता आप 2 साल का मास्टर्स करके भी कोई बड़ा मतलब लाइफ का 1 साल बहुत वेस्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है वो इन्वेस्ट ही हो रहा है। अगर पीएचडी करना है तो मतलब 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम को मैं तो कहूंगा कि इंग्लिश स्पीकिंग में है तो 1 ईयर मास्टर्स करके आप बहुत इजीली इंग्लिश स्पीकिंग में पीएचडी गेन कर सकते हैं। बट आप इतना ओपन नहीं रह सकते रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। तो बट अगर आपको एलिजिबल रहना है पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, तो मुझे लगता है 2 ईयर मास्टर्स हमेशा सेफ ऑप्शन है। बिल्कुल। मतलब इफ इट्स डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर, जो आप अपना सोच रहे हो, फ्यूचर ओरिएंटेड है ये चीज। एक बच्चा अगर क्लियर है बिल्कुल कि उसके फ्यूचर में उसको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाना है, इंडिया में एक्सपीरियंस है उसके पास या नहीं भी है, एंड फर्दर वो 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम के बाद इंडस्ट्री लाइन में जाना चाहता है, तो आई थिंक 1 ईयर हाँ मास्टर्स program is good for that particular student, depending upon the country he's targeting, right? But अगर वो PhD भी करना चाहता है, रिसर्च में टोटली जाना चाहता है, and he wants to open up gates for all the countries, so 2 years master program is a good option, right? Rest मैं तो यही कहूंगी at the end of this particular conversation कि अगर कोई भी बच्चा अपने आप को like he or she is targeting masters from abroad, वो confused है 1 year 2 year करना है, so we have experts Sanam sir, Harish sir and Arham sir, so वो कभी भी आपके पास अपनी प्रोफाइल इवैल्यूएट करा सकते हैं। आई थिंक they'll get a good ideas, even they'll get to ट्रू know more कि उनकी प्रोफाइल के हिसाब से क्या suitable है, right? ट्रू ट्रू। Like a final trick of Ireland, I'll tell, keep watching on whoever is getting hired recently in terms of assistant professor, because by complimentary they get a PhD funding Yeah. in like most of the big Irish universities. So उनको funding like ये internal है, वो ज़्यादातर लिखते हैं, जैसे सनीम सर ने बोला कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लिखते हैं फंडिंग के लिए, यहाँ पे भी लिखते हैं। पर अगर कोई नया है, नया हायर हुआ है, तो उसको एक फंडिंग तो मिलता है पीएचडी का, और वो जल्दी में रहता है कि मैं हायर करूँ किसी को। तो So I think ये ट्रिक्स बच्चों को नहीं पता और ये ओपनली डिस्कस भी नहीं होती, और अगर वो आपसे कनेक्ट करेंगे तो मेंटर्स उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? सो वी हैव सनम सर एंड हरेश सर, अरहम सर, तो मुझे लगता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज से आप लोग हो, सॉरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से आप हो, और बच्चों के लिए इट्स वेरी यूजफुल ऑल्सो कि अगर वो सबसे एक एक थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, सो दे कैन गेट अ गुड आइडिया ऑफ देयर फ्यूचर, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, सनम sir, Harish sir, and थैंक यू Arham sir. थैंक यू। And I थैंक यू। hope students will definitely, after watching this video, they'll be like keen to take your time for their profiles. So I hope that students meet you and they get the idea of their future, right, sir? Yeah, Yeah. thank Okay. you। Thank you so much, sir. Okay. Thank you. Thank you. Yes।